السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مولانا عبد الخبیر آزاد کو رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ رویت حلال کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مرکزی رویت حلال کمیٹی چیئرمین سمیت 19 اراکین پر مشتمل ہوگی، جبکہ مولانا عبد الخبیر آزاد کو چیئرمین رویت حلال کمیٹی مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی میں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، علامہ محمد حسین اکبر، مولانا فضل الرحیم، جبکہ ڈاکٹر یاسین ظفر، مفتی محمد اقبال چشتی اور ڈاکٹر مفتی علی اصغر شامل ہوں گے۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی میں اسپارکو محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، جبکہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور وزارت مذہبی امور کے نمائندے بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ بھارت باز نے آیا ایک بار پھر ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی۔ کھوئی سیکٹر میں فائرنگ، پاک فوج کا سپاہی فضل الہی شہید، پاک فوج کا بھرپور جواب، بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا، بھارتی مالی اور جانی نقصان پہنچایا۔ تتا پانی سیکٹر میں بھارتی کواد کاپٹر بھی گرایا گیا، جبکہ بھارتی کواد کاپٹر ایل او سی کے 100 میٹر اندر گھس آیا تھا۔ پاک فوج کا سپاہی فضل الہی شہید ہو گیا، پاک فوج کا بھرپور جواب، جبکہ بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا، بھاری مالی اور جانی نقصان پہنچایا۔ تتا پانی سیکٹر میں بھارتی کواد کاپٹر بھی گرایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کے مقبوضہ کشمیر میں کیے جانے والے غیر قانونی اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور منفی پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پاکستان کے خلاف جاری بھارتی پروپیگنڈے، خصوصاً بھارتی میڈیا کی جانب سے جاری ہائبرڈ وار فیئر کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں پاکستان کے خلاف بھارتی میڈیا کی جانب سے غلط معلومات اور منفی پروپیگنڈے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں کیے گئے غیر قانونی اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کے اتحادی جماعتوں سے رابطوں میں تیزی آ گئی۔ پی پی کا وفد تاج حیدر کی قیادت میں بہادر آباد مرکز پہنچا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت میں شمولیت کے لیے پہلی شرط مردم شماری ہی تھی۔ تاج حیدر نے کہا کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو عوام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آگے بڑھیں گے۔ 17 کی مردم شماری کے نتائج جو نہ تو کراچی حیدرآباد کے ساکنوں نے قبول کیے، نہ سندھ کے دیگر اضلاع کے ساکنوں نے قبول کیے، اور ان کی جو 2 بڑی نمائندہ جماعتیں رہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، انہوں نے بھی قبول نہیں کیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی سینیٹر تاج حیدر صاحب کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اٹھاتی رہی، اور ایم کیو ایم پاکستان اس میں واحد جماعت ہے کہ جو سپریم کورٹ میں گئی پٹیشن لے کر، اور آج بھی ہماری ہی وہاں پٹیشن موجود ہے۔ ہم نے تحریک انصاف کی حکومت سے جب معاہدہ کیا، کیونکہ پارلیمان نے تو 2018 میں یہ طے کر دیا تھا کہ یہ 5% آڈٹ ہوگا، قومی اسمبلی نے کر دیا تھا، اور سینٹ نے اس میں کچھ کنڈیشنز لگائی تھیں۔ تاج صاحب خود موجود تھے، ایم کیو ایم کے سینیٹرز تھے اور دیگر تمام جماعتوں کے، کہ ان کنڈیشنز کے بغیر اس حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا اس کاؤنٹ کو۔ 2018 میں ہم نے 3 اگست 2018 کو معاہدہ کیا، شق اول تحریک انصاف کے ساتھ یہی رکھی جو کہ مردم شماری کے حوالے سے جو پارلیمان کی قراردادیں ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ آڈٹ کریں آپ، یہ شکایات کا ازالہ کریں جہاں جہاں لوگوں کو کم گنا گیا ہے، اور ہم سب کا ماننا یہ، ہم جتنے یہاں کھڑے ہیں، کہ صوبہ سندھ میں ان کو کم گنا گیا ہے۔ 2017 کے سینسس کی فگرز کو نہیں مانتے اور 5% بلاکس میں ڈیفیکٹو بنیاد پہ پھر سے مردم شماری کی جائے۔ جو آپ نے کہا دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دا میڈنس، یہ میڈنس نہیں ہے، دس از اے میتھڈ، اور وہ میتھڈ جو اختیار کیا گیا وہ یہ اختیار کیا گیا کہ تمام وہ لوگ کہ جو دوسرے صوبوں سے سندھ میں آ کے بسے تھے ان کو سندھ کی آبادی میں
सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान से मरियम नवाज की मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल किया गया, इस्तीफों पर भी गुफ्तगू की गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीटीएम का मुस्तकबिल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती है, नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि 1 जनवरी को पीटीएम के इजलास में तजावीज पर गौर होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुनेंगे, लेकिन फैसले मुश्तरका होंगे। मरियम नवाज कहती हैं वजीर आजम सेलेक्टेड है तो अब रिजेक्टेड भी होगा। पैनामा से सिर्फ अकामा निकला, झूठे इल्जाम पर हुक्मरान आज शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। बगैर तैयारी आने वाले अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के यौम तासीस से मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर वार होता है। इमरान की नालायकी और नाअहली की वजह से मोदी की झोली में कश्मीर जाकर गिरता है, और जब पाकिस्तान इस नालायकी आजम की वजह से कश्मीर का मुकदमा हार जाता है तो जख्म पूरे पाकिस्तान के दिलों पर लगता है। देखो, ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? कश्मीरी भाइयों, बात यह है कि जब एक कमजोर वजीर आजम आता है पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम की ताकत से नहीं आता, जो आपके वोट से नहीं आता, और जब एक कमजोर हुकूमत होती है तो भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पे वार करता है, और उसने पाकिस्तान की शहरत पर वार किया और कामयाब हुआ। और जब पाकिस्तान में आपके वोटों से आने वाला अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो मोदी जैसा खुद चलकर पाकिस्तान आता है। ये है फर्क अवामी वजीर आजम का और जाली वजीर आजम का। इसीलिए कहते हैं कि वोट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर वार हो जाए। और आप जानते हो, मुझे कश्मीर, मैं हूं कश्मीर की बेटी, मेरी रगों के अंदर नवाज शरीफ और कश्मीर का खून है, इसलिए मुझे कश्मीर से खास मोहब्बत है। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने और हुकूमत के लिए मैदान खाली न छोड़ने का फैसला कर लिया। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी क़यादत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन का मैदान खाली न छोड़ने का फैसला कर लिया और कहा कि मुस्लिम लीग नून को सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। बेशतर लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कौल व फ़ील में तज़ाद नजर आ रहा है। लीगी अरकान असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद अपने इस्तीफों से मुनहरिफ हो गए। कहते हैं कि इस्तीफे तो पार्टी क़यादत को भिजवाए थे, बराह रास्त स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए, इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से इस्तीफा देने वाले नून लीग के अरकान असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद ने मुलाकात की और इस्तीफों से इजहार लाताल्लुकी कर दिया और जाली करार दे दिए। स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक इस्तफसार पर दोनों अरकान कौमी असम्बली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों ने अपना इस्तीफा बराह रास्त स्पीकर ऑफिस को नहीं, सिर्फ क़यादत को भिजवाया था, लिहाजा मंजूर न किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस्तीफों की तस्दीक से इनकार पर उनका ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। दोनों अरकान के इस्तीफों के हवाले से कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर फैसला करेंगे। अगर मजीद अरकान के इस्तीफे भी आए तो इन पर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे, अपोजिशन अपना फैसला कर ले। सियासी इंतकाम के कायल हैं, ना एहतसाब से पीछे हट सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्त होती है, अब वो क्यों होती है उसकी वजाहत ख्वाजा साहब खुद कर सकते हैं। उनको मौका दिया गया, उनको कई मर्तबा दावत दी गई कि जो सवालात थे उनका वो जवाब दें और नैब को मुतमईन करे, ताकि नैब इस नतीजे पे पहुंचे कि उन पे कोई चीज़ बनती नहीं है। लेकिन लगता ये है कि वो नैब को
मुतमईन नहीं कर पाए, और जिस किस्म का उन पर जो इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग का, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का, उसका वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अब अगर वो ट्रेल दे देते, मनी ट्रेल दे देते, अगर वो वजाहत पेश कर देते, तो शायद ये गिरफ्तारी की नौबत ना आती। नैब ने यकीनन, उनके पास तफसीलात होंगी, आपके सामने आ जाएंगी, वो प्रॉपर्टीज जिन पे सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं, कोई और तीसरा नहीं दे सकता। हम ये कह सकते हैं कि आज देखने की बात ये है, और हमें आज समझ आती है, मुझे खास तौर पर आज समझ आती है कि जब हम बैठकर ऑपोजिशन की इन दो बड़ी जमातों के साथ गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे फैटफ की कानून साजी पर, तो हमें हैरानी होती थी कि फैटफ की कानून साजी का नैब के कानून से क्या ताल्लुक जुड़ता है, वो अलहदा चीज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना है कि कानून किसी का मुतहद नहीं, सब कानून के मुतहद हैं। जिस तरह आम शहरी हैं, इसी तरह उन लोगों को भी जवाब देना होगा। सेनेट में भी इनसे सवाल पूछेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि ये लोग अपनी स्याकारियां छुपाने के लिए प्रोपेगेंडे करते हैं। कि हम यही देखते हैं कि बदकिस्मती से जो हमारे माजी के हुक्मरान थे, उन्होंने इदारों को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं की सहूलतकारी से अपनी नाजायज़ दौलत को मुल्क से बाहर ले गए, मुल्क को गरीब किया, अवाम को गरीब किया। आज जो आप अगर महंगाई देखते हैं या और जितने भी मसाइल हैं, हमारे माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने में रही। अब कल जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि सेनेट का इजलास हो रहा है, और ये सेनेट का इजलास रिक्वेजिशन किया है अपोजिशन ने, और उनके जो 6 नुकाती एजेंडा है जो कि उनका है, हमारी तरफ से कोई एजेंडा आइटम नहीं है। इसमें एक बार फिर कोशिश की गई है कि किस तरह से जो पार्लियामेंट का फ्लोर है उसको इस्तेमाल किया जाए अपनी स्याकारियों को छुपाने के लिए, एक प्रोपेगेंडा शुरू करने के लिए, एक ऐसा नैरेटिव बनाने के लिए जिससे कि ये जाहिर हो कि इनके साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है। लेकिन हम चूंकि तादाद में कम भी हैं, लेकिन हम वहां पे बैठे होंगे, हम जो ये एजेंडा है, हमारे सवालात होंगे और उनके जवाबात देने होंगे। प्रॉब्लम इनका ये है कि जब आप इनसे सवाल पूछते हैं तो बजाय इस सवाल का जवाब देने के, हमारे सवाल का जवाब बेशक न दें, लेकिन अदालतें या जो भी डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि मुस्ताफी शख्स को स्पीकर असेंबली के पास पेश होना होता है। लीगी मेंबरान हिम्मत करें और स्पीकर के पास जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर अवान का कहना था कि पहली दफा पाकिस्तान में सादिक और अमीन शख्स ऊपर बैठा है। करप्शन और किकबैक्स की जो आमदनी है नाजायज, ये वो खाना है। ये आमदनी मुल्क से बाहर कैसे जाती है? इसके नीचे आ जाइए, इकामा। जो मरियम कह रही थी कि मेरे अब्बा को इकामे में खामखा सजा दी गई, ये इकामा जब मिलता है तो इसका फायदा क्या होता है? आपको फॉरेन बैंक्स में अकाउंट्स खोलने की इजाजत, बैरून मुल्क अकाउंट्स खोलने की इकामा मिलने के बाद आपको इजाजत मिल जाती है। जब ये इजाजत मिलती है तो फेक एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जिस तरह से अभी इससे पहले नवाज शरीफ साहब के केस का वो। और फिर क्या होता है कि ये मनी ट्रेल जाती है, यहां पैसे जो नाजायज कमाए हुए हैं इनको बैरून मुल्क जमा कराने के लिए। आप वहां से दरमियान में ये जो काला खाना है इसमें देखेंगे, इसमें काला माल पड़ा हुआ है, ये ऊपर जाता है तो इसको कहा जाता है फ्लाइट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुल्क से पैसे उड़ गए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रुपया महंगा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दाल, आटा, चीनी, अंडा, मुर्गी ये सारे महंगे हो जाएंगे। उसके बाद आप जरा नीचे आइएगा, ग्रीन की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और कौम की तवज्जो चाहूंगा। ये कुछ पैसे, बाकी पैसे तो ये बाहर निकाल देते हैं और ऑफशोर कंपनियों में उनको रखते हैं, लेकिन कुछ पैसे उनमें से ये वापस ला के ये जो सब्ज पाक सरजमीन है इसके अंदर वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से यहां से नाजायज कमाए हुए पैसे।
कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने तमाम मुल्कों के वीजे ऑनलाइन करने का ऐलान किया। ये सारे लोग अकामा क्यों लेते थे? अगर मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, कल अकामा लूँ तो इसका मतलब है मैं दाल में काला है ना, मुझे अपनी धरती पे ईमान नहीं है मेरा। इंशाअल्लाह ताला ये कल जो कुछ हुआ है, ये सारे चोर क्यों इकट्ठे होते हैं? ये सारे चोर ये इकट्ठे होते हैं कि इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते, और इनको जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो सारे करप्शन के पैसे हैं, उन सारे पैसों को जब एक्सपोज होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे से इंतकाम लिया जा रहा है। कोई दहशतगर्दी में इंशाअल्लाह दहशतगर्दी की थ्रेट जरूर है। पहली अच्छी ट्रांसपोर्ट्स मंगा रहे हैं। ईगल इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए ईगल स्क्वाड चलाने लगे हैं। 100 ट्रांसपोर्टरों पे 100 मोटरसाइकिलों पे मुश्तमिल ईगल स्क्वाड जो है वो जल्द ही ECC से पैसे लेके उसे मंजूरी दी जाए। मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं और चोरों के लिए दरवाजे भी खुले हैं। जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो असेंबली में आके मुज़ाकरात करे, जिसने मालबानी बनाया वो दूसरे बड़े गेट में जाए। हम जनाब अली 191 मुल्कों को जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में लोग मरीम नवाज वज़ीर आज़म इमरान खान को पीर मान लें, फिर दोसाची कमान ने लीगी रहनुमा को मशवरा दे दिया। कहती हैं कि इमरान खान के बाउंसर से PDM के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान क्रीज पर अकेले रह गए। नैब अगर मौलाना को बुलाए तो जाना चाहिए। करप्शन के समंदर में गोते खाने वाला, करप्शन का बेताज बादशाह और करप्शन किंग, जिसको सियालकोटी ठग के नाम से पहचाना जाता है, वो सियालकोटी ठग जो है वो नैब के शिकंजे में आया और रहबर बन के, राहजन का रूप धार के, जो मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला टोले का सरगना जो था, उसकी कारकर्दगी बेनकाब हुई है। नैब की तरफ से इस ठग पे हाथ डाला गया तो मीडिया की आंखों ने देखा कि जो इल्ज़ामात सामने आए, उन इल्ज़ामात में एक ईवल गठजोड़ भी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन में नैब ने बेनकाब किया। वो ईवल गठजोड़ जो था एक ऐसी खातून से मुतल्लिका था
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी के पीछे 100% इमरान खान के मकासद हैं। एहतसाब अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे चार्जशीट दी गई कि मेरे असासे बढ़ गए, लेकिन अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। 2-2.5 साल से पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है और नवाज शरीफ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अब बहुत केस चलेंगे, नैब का कानून अब ऐसा ही रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि गिरफ्तारियों से पीडीएम की तहरीक को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बदनीयती के साथ ख्वाजा आसिफ का केस लाहौर रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट मुकदमे से मुताल्लिक फैसला दे चुकी थी। बेबुनियाद केस में गिरफ्तार किया गया। नैब इमरान नियाजी की जाली तंजीम बनकर अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन नैब की ये कारस्तानियाँ इमरान नियाजी की हुकूमत को नहीं बचा सकती। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे में फैसला दे चुकी है और वो दरख्वास्त जो इनके खिलाफ इनके मुखालिफ ने दी थी, जिस पे नाअहलियत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस दरख्वास्त पे तफसील से बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को एग्जॉनरेट किया। इसके बाद ये इंक्वायरी जो इस्लामाबाद नैब ऑफिस में चली, पिंडी इस्लामाबाद ऑफिस ने हाथ खड़े कर दिए कि इस केस में कुछ नहीं निकलता, तो चेयरमैन नैब ने बददियानती के साथ इसे लाहौर नैब को ट्रांसफ़र किया ताकि वो सियासी तौर पे मुकदमा बनाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुक्मरान पीटीएम और नून लीग को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ पार्टी के साथ मुखलिस हैं। इनकी गिरफ्तारी जुब्र और ज़ल्म का पैगाम है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्तीफे देने का अभी फैसला नहीं हुआ। पीटीएम ने इस्तीफों के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है, जबकि सेनेट इलेक्शन में नून लीग का हिस्सा लेने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतसाब अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मेहरगढ़ के विरसा की बहाली की मद में दिए जाने वाले फंड्स में मुबैना करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी की अदम पेशी पर जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में तमाम सरकारी जमीनों से कब्जे खत्म कराने और ग्रीन बेल्ट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहिद परवेज ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। काजी शाहिद परवेज ने एतराफ किया कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं। सिंध में साल 1985 से अब तक 2,40,000 से ज्यादा जमीनों की बोगस एंट्रीज की निशानदही हुई है। 1100 से ज्यादा एंट्रीज जुडिशियल रिव्यू में हैं। एक 1000 से ज्यादा जाली एंट्रीज खत्म कर दी गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि सूबा भर में 7 करोड़ दस्तावेजात कंप्यूटराइज कर दी गई हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज भी हाई कोर्ट में जाली दस्तावेजात के केस दायर हो रहे हैं। सूबे में कोई सरकारी जमीन बच सकी है? जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ठट्ठा की जमीनों के रिकॉर्ड में बहुत गड़बड़ है, हर एक ने अपनी मर्जी के दहे बनाए हुए हैं। अदालत ने सूबा भर की सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने और ग्रीन बेल्ट बहाल कराने का हुक्म दिया। अदालत ने खेल के मैदानों, पार्क से तजावुजात खत्म कराने, महकमा जंगलात की जमीनों से कब्जा खत्म करके दोबारा जंगलात लगाने और महकमा आबपाशी की जमीनों से भी कब्जा खत्म कराने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने घरेलू सारिफीन के रिलीफ सनतों को बिला ताअत्तुल और सस्ती बिजली की फराहमी को हुकूमती तरजीहात में सरफहरिस्त रखने की हिदायत कर दी। मजीद इस हवाले से देखिए इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे का जायजा इजलास हुआ। वफाकी वज़रा उमर अयूब, मखदूम खुसरो बख्तियार, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, हम्माद अजहर, मुआविनीन खसूसी ताबिश गौहर, नदीम बाबुर, वक़ार मसूद और मुतल्लिका आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बिजली की पैदावार, तरसील की बेहतरी और एनर्जी मिक्स को बेहतर और माहौल दोस्त बनाने के साथ साथ सस्ती बिजली बनाने के मुजव्वज़ा मंसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म को हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस की वबा के बावजूद सनत और आम आदमी के रिलीफ के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में बताया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई शोबे की इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए घरेलू सारिफीन के रिलीफ और सनतों को बिला ताअत्तुल और सस्ती बिजली की फराहमी को हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात को देर पा और इनमें मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखने पर भी जोर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से समाअत नेपरा में हुई। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.06 महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा अक्टूबर और नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी होगी, जबकि नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 77 पैसे महंगी होगी। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तैयारियां कर ली। पेट्रोल ₹3 तक महंगा करने की तजवीज कर दी। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डालने की तैयारियां कर ली गईं। अवाम को नए साल के आगाज में ही पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। आगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। आगरा की समरी में पेट्रोल ₹2.96 फी लीटर महंगा करने की तजवीज दे दी गई है। हाई स्पीड डीजल ₹3.12 फी लीटर महंगा करने पर गौर कर रही है, जबकि मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा करने की तजवीज है। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 10,047 हो गई। मजीद 2,155 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,77,000 से जायद हो गई। 4,30,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 37,000 से जायद मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 55 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,982, सिंध में 3,520, खैबर पख्तूनख्वा में 1,627, बलूचिस्तान में 182, गिलगित बिल्तिस्तान में 101, आजाद कश्मीर में 220 और इस्लामाबाद में 415 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। और अब खबर यह है कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 18 लाख हो गई। मरीजों की तादाद 8 करोड़ 25 लाख तक जा पहुंची। 5 करोड़ 85 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,47,000, भारत में 1,49,000, रूस में 56,426 और सऊदी अरब में 6,204 अमवात हो चुकी हैं। वजीर आला उस्मान बुज़ार कहते हैं कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। वजीर आला उस्मान बुज़ार ने अपने बयान में कहा कि साबिक हुक्मरानों ने अपने दौर में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। बदउन्वान अनासिर को सिर्फ लूट मार से इकट्ठी की गई दौलत बचाने की फिक्र है। करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान को पीछे धकेला है। करप्शन करने वालों को अवाम की तरक्की के सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे। शहबाज गिल कहते हैं कि पीटीएम अवाम और जमहूरियत के नाम पर जाती मफादात की जंग लड़ रही है। पीपल्स पार्टी का मियां मफरूर के बुलावे की शर्त कैलपरी क्वीन और फजलुर रहमान के ऊपर बिजली बनकर गिरी। वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि करप्शन बचाओ मिलकर खाओ मकसद के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क दुश्मनों का बयानिया फैलाया गया है।
امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایڈ ہاک ایزن کی بنیاد پر چل رہی ہے. پی ٹی ایم میں شامل 2 جماعتوں نے بھی حکومت کے مزے لیے اور ملک کو مسائل سے دوچار کیا. سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی ان مسائل میں مزید اضافہ کیا. حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ کو لانے والے بھی پریشان ہیں. ملک کو پٹری پر ڈالنے کے لیے نظام بدلنا ہوگا. جماعت اسلامی نظام بدلنے کے لیے مصروف عمل ہے. مقبوضہ کشمیر میں ظالم اور قابل